Welcome to lesson number 10, Circle. Now, this chapter is an extension of 9th standard, but rarely any topic is repeated. तो और छोटा सा चैप्टर है. So I would like to tell you only one thing. Figure is very important. Without figure, if you're doing any sum, I'm not ready to believe that you have actually done it. I would term it as pure copy. तो बहुत कम सम्स है जो बिना फिगर के होंगे. सो मेक श्योर यू ड्रॉ फिगर इन एवरी सिंगल सम ऑफ दिस चैप्टर. Let us first understand few words, out of which diameter and radius are two words which you already know. Chord is a word which I hope you know from 9th standard, that in a circle, if 2 points are chosen on the circle and joined, it becomes the chord of the circle. And how many chords are there in a circle? Answer is infinite. So there are infinite points on the circle, and out of those infinite points, you join any 2 points, you always get a chord. And largest chord of the circle is diameter. So diameter is a chord. It's the largest chord of the circle. But tangent, spelling mistake, T-A-N-G-E-N-T, टेंजेंट और सेकेंट क्या है वो मैं तुमको बताता हूं. इमेजिन द इंटरेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन. एक सर्कल और एक लाइन के बीच में 3 पॉसिबिलिटीज है. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज द लाइन इज आउटसाइड द सर्कल, डज नॉट टच इट. इस लाइन का कोई नाम नहीं है. इट्स जस्ट अ लाइन and a circle. But if the line cuts the circle at 2 points, A and B, and it's an infinite line, ये कॉर्ड नहीं है, समझो बात को. कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट नहीं होता है, लेकिन ये लाइन है, ये इनफाइनाइट है दोनों तरफ से. एंड व्हेन अ लाइन कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड सेकेंड. एंड द लास्ट ऑप्शन इज द लाइन टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट. एंड इफ द लाइन टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. तो टेंजेंट, सेकेंड एंड कॉर्ड. एंड दिस चैप्टर वी विल यूज अ लॉट ऑफ टेंजेंट्स, लिटिल बिट ऑफ कॉर्ड, और सेकेंड तो होगा ही नहीं, सो फॉरगेट अबाउट इट. What is this figure trying to tell you? This figure is trying to tell you that when you choose a single point on the circle, सर्कल के ऊपर पॉइंट P चूज करो, तो we already know from basic geometry that infinite lines pass through a point P. This line cuts the circle at P and B double dash. This line cuts the circle at P and R2, R3 actually, B double dash nahi, R3, R2. This line cuts the circle at R1. P and R1, P and R2, P and R3. Therefore, these all are seconds. दूसरी तरफ ये लाइन देखो. It cuts the circle at P and Q1. P and Q2. P and Q3. They are also seconds. But there is only one line which is just touching the circle at 1 point, that is P. And this line is called the tangent of the circle. तो कंक्लूजन क्या है? ये डायग्राम और इतना समझाने का मतलब, कंक्लूजन ध्यान में रखो.
For a given point on the circle P, there are many seconds possible, but there is one and only one tangent possible from that point. तो सर्कल के हर एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है या एक टेंजेंट पास हो सकता है. बाय हार्ट दिस कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ओके, मान लो कि पॉइंट पी ये है और पॉइंट पी के थ्रू टेंजेंट जो पास हो रहा है वो ये है. टेंजेंट इज अ लाइन, देयरफॉर एरोज इज अ मस्ट. अब सर्कल के पास कितने रेडियस है? इनफाइनाइट रेडियसेस आर देयर इन अ सर्कल. तो ये एक रेडियस है, ये कोई और रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है. आउट ऑफ ऑल द रेडियसेस there is only one radius which can touch the point P. तो टेंजेंट और रेडियस का जो मिलाप होता है वो P पे होता है और P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब जहां से पॉइंट टेंजेंट निकल रहा है. तो moral of the story is radius is always perpendicular to the tangent, hence angle P is always 90. ये कॉन्सेप्ट सम्स में बहुत काम आएगा कि टेंजेंट एक है, बहुत सारे रेडियस में से एक रेडियस उससे परपेंडिकुलर होता है. So one special radius is always perpendicular to the tangent, और वो रेडियस ऐसा है जो P को टच करता है, Q, R, S, T को नहीं. So radius and tangent are perpendicular to each other. Important concept. जो ऐसा कुछ दिखेगा, सर्कल सर्कल सर्कल. टेंजेंट कहीं से भी पास हो सकता है. टेंजेंट टचिंग एट वन पॉइंट, टेंजेंट टचिंग एट वन पॉइंट, टेंजेंट टचिंग एट वन पॉइंट. और ये टेंजेंट से सेंटर को टच करो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से सेंटर को ज्वाइन करो, तो वो रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्रीज होंगे. कितना भी गंदा हाथ से डायग्राम बनाओ तो भी ये 90 डिग्री ही बनेगा. मुझे भी दिख रहा है ये सर्कल सर्कल नहीं ओवल है, फिर भी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. द टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट P ऑन द सर्कल. 9th स्टैंडर्ड का एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि एक पॉइंट है P और एक लाइन है L. पॉइंट P और L के बीच का डिस्टेंस मैं ऐसे मेजर कर सकता हूं. PQ1, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L. बट Q2 भी L के ऊपर है, मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूं PQ2. There is one more point, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q, Q8, Q9,
और ये सारे पॉइंट से P का डिस्टेंस अलग अलग आएगा, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है ये PQ। ये सारे लंबे डिस्टेंसेस है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन से वो 90 डिग्री होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, जो यहां काम आएगा टू प्रूव थियरम 10.1। and this theorem can be asked in exam unless it is omitted, that you have to see for this year. Theorem 10.1 this year मतलब 2020। अगर तुम 2021 में या 2022 में ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ओमिट नहीं है, चुपचाप 5-5 बार थियरम लिख के बाय हार्ट कर दो। Theorem 10.1 prove that tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। प्रूव करो कि सर्कल के टेंजेंट को एक रेडियस जो उसी पॉइंट को टच करता है वो परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव करेंगे? पहले लिखो गिवन। टेक्स्ट बुक से बेटर लैंग्वेज यहां पे मिलेगी, देयरफॉर यूज दिस और बाय हार्ट द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में भी कथा की है, मैं भी तुमको एक कथा ही सुनाने वाला हूं। गिवन दिस इज द सिंबल ऑफ सर्कल विथ सेंटर O and radius R. This is the short way of telling a circle whose center is O and radius is small r. Line XY is tangent. This is also given. And OP is radius. This is also given. और टेंजेंट जहां टच करता है P इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो जो फिगर है वो सब कुछ गिवन है, तुमको लिख देने का। द सर्कल इज गिवन, द टेंजेंट इज गिवन, द रेडियस इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दूसरे शब्दों में OP is perpendicular to line XY. This we have to prove. And how will we prove is simply by writing a story from our background in 9th standard. Proof. Let Q be a point on XY, full stop. Therefore Q is outside circle. ऐसे कैसे? अब दिख रहा है, ठीक है, बट Q आउटसाइड सर्कल क्यों हो गया? बिकॉज only one point of the tangent can be on circle. तो टेंजेंट का डेफिनेशन ही वही है, that only one point of the tangent can be on circle, और वो P है। तो Q सर्कल पे नहीं है, तो Q सर्कल के बाहर है। Therefore OQ is more than OP। क्योंकि एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा था 9th स्टैंडर्ड में कि जो सर्कल के बाहर होता है वो लंबाई सर्कल के ऊपर से बड़ी होती, और अगर कोई सर्कल के अंदर है तो वो लंबाई रेडियस से कम होती। तो इट इज लॉजिक, दिस इज शॉर्टर, दिस इज लॉन्गर एंड दिस इज लॉन्गेस्ट बिकॉज इट इज आउटसाइड द सर्कल। So OQ is more than OP because we have shown that Q is outside the circle. Similarly,
no matter which point we take, on xy, चाहे जो मर्जी पॉइंट ले लो लाइन xy पे, it will be OQ डैश ग्रेटर देन OP, मतलब दूसरा कोई भी पॉइंट हो वो भी OP से तो बड़ा ही होगा. Therefore OP is shortest distance of point O from line XY. ये 9 स्टैंडर्ड का है. OP is the shortest distance of point O from line XY. Therefore OP is perpendicular to line XY. ओवर. तो 9th का ही कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया कि पॉइंट और लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दिया. देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. थियरम 10.1. नेक्स्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट. ये फिगर क्या कह रहा है? सर्कल के अंदर पॉइंट हो, सर्कल के ऊपर पॉइंट हो, सर्कल के बाहर पॉइंट हो, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल. इनसाइड द सर्कल जीरो टेंजेंट्स आर पॉसिबल. कोई भी लाइन ड्रॉ करो वो हमेशा सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती, इसलिए वो टेंजेंट बन ही नहीं सकता. बट इफ द पॉइंट P इज ऑन द सर्कल तो वन टेंजेंट इज पॉसिबल. वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कल. और अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल. एक ओनली 2, एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से. तो अंदर P, सर्कल के ऊपर P, सर्कल के बाहर. दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. अब मैं रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं. यहां से व्हेन आई ड्रॉ द रेडियस, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन थियरम 10.1 दैट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे 90 डिग्री होता है. और यहां पे सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T1 90 डिग्री एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 ऑल्सो 90 डिग्री. ये 2 डायग्राम दिमाग में फिट कर लो, बहुत 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 काम आएंगे. तो पॉइंट इज इनसाइड, नो टेंजेंट पॉसिबल. पॉइंट इज ऑन द सर्कल, 1 टेंजेंट पॉसिबल. पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल. कंस्ट्रक्शन में किया तो है, तो बेसिक्स तो पता है. और कोई भी कंस्ट्रक्शन उठा के देख लो, ये 90 ही होगा अपने आप. ये भी 90 होगा. That brings us to theorem 10.2. Theorem 10.2 tells us that the length of the tangents drawn from an external point are equal. मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, वहां से तुम PQ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और PR टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. और टेंजेंट एक्चुअल में ऐसा होता है इनफाइनाइट, और वो पीछे भी जा सकता है. बट ऐसे कोई ड्रॉ नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे. बट रिमेंबर दैट 2 टेंजेंट्स आर बेसिकली 2 लाइंस, और पॉइंट P से एक टेंजेंट Q को और एक टेंजेंट R को टच करता है. प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू PR. इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. पहले लिखो गिवन a circle with center O and radius R. P outside circle, PQ and PR
टेंजेंट्स, खत्म। सर्कल दिया हुआ है, पॉइंट P दिया हुआ है और P से दो टेंजेंट दिए हुआ है। अब लिखो टू प्रूव। टू प्रूव मतलब P से जो दो टेंजेंट है उनकी लंबाई सेम है, PQ इज इक्वल टू PR प्रूव करना है। And proof is very simple. Choose the two triangles which you see by drawing them first. तो मुझे दो ट्राइंगल दिखते हैं P Q O, P R O। देखो यहां पे क्लू लिखा है, क्लू फॉर द प्रूफ इज RHS थियरम। RHS थियरम, R मतलब राइट एंगल। यहां पे राइट एंगल कहां है? तो राइट एंगल कहां है उसके लिए ये रिकॉल कि एक सर्कल को एक टेंजेंट और एक रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 होता है। यहां पे पहला टेंजेंट है PQ और रेडियस है OQ। तो कैन आई से दैट Q इज 90? यस। दूसरा टेंजेंट है PR, रेडियस है OR, so I can say tangent and radius are perpendicular. Q 90, R 90, और ये थियरम 10.1 ने बताया है। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल PQO and triangle PRO, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। रीजन थियरम 10.1 जो हमें कहता है कि 90 डिग्री होता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में। फिर PO इज इक्वल टू PO, कॉमन आर्म, दोनों ट्राइंगल में PO है तो वो तो सेम ही होंगे। और दूसरा OQ इज इक्वल टू OR, क्योंकि OQ OR दोनों सर्कल के रेडियस है और सर्कल का रेडियस सेम होता है। तो ये हो गया RHS थियरम। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने था जो PO है, और साइड OQ OR भी सेम है बिकॉज वो दोनों रेडियस है। Therefore, triangle POQ is congruent to triangle PRO। POQ, हाँ POQ POR या PQO PRO are congruent। और अगर 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 दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो PQ और PR सेम है, CPCT 9 स्टैंडर्ड। Therefore PQ is equal to PR CPCT। तो ट्राइंगल चैप्टर से यहाँ पे बोरो किया है कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी इजी थियरम, इट्स लाइक अ स्मॉल सम। तो दोनों टेंजेंट हमेशा सेम होते हैं। और कंस्ट्रक्शन में पूछते कभी कभी मेजर द टेंजेंट्स एंड कमेंट, तो तुम मेजरमेंट में जो भी आए बट इक्वल लिखना, भले 0.1 0.2 का फर्क है, बट दैट इज बिकॉज योर हैंड्स आर शेकिंग, योर राउंडर इज शेकी, बट आइडियली टेंजेंट शुड बी इक्वल। सो नेवर finish the construction and write that therefore PQ is 5.6 centimeter and PR is 5.7। टीचर देख के ही गलत दे दी। जो लिखना है लिखो लेकिन सेम लिखना। Exercise 10.1 full of objective questions, not any serious sum। How many tangents can a circle have? A circle can have infinite tangents। How? सर्कल के ऊपर से टेंजेंट, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, चारों तरफ से टेंजेंट्स पास हो सकते। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट 2। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। एक सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अब और कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो? 1
2 3, गलत, ये तो सेकेंड है, विच कट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, टेंजेंट पैरेलल सिर्फ 2 हो सकते हैं। बट कहानी में एक ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। हाउ मैनी pairs of parallel tangents are possible in a circle? What should be the answer? Think about it. A circle can have 2 parallel tangents at the most. Maximum 2 tangent है जो parallel है, ऐसे हो सकते हैं, but ऐसी कितनी जोड़ी हो सकती है? Answer is infinite, and this you have to imagine. And if you cannot imagine, you have to ask me on WhatsApp so I can tell you the real answer. A common point of tangent to a circle and the circle is called dash. A common point of tangent and the circle, मतलब tangent और सर्कल के बीच का कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। Third question. A tangent PQ at a point P of the circle of radius phi meets a line through the center at a point Q so that OQ12 and length PQ is how much? Looks complex, but break it down. Break it down. Tangent PQ at point P. Tangent है मतलब सर्कल होगा, बेस्ट। टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ द सर्कल, तो P सर्कल का पॉइंट है और Q बाहर है। रेडियस 5, तो रेडियस हमेशा ना ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ड्रॉ करने का, अनाप शनाप जगह पे रेडियस नहीं ड्रॉ करने का। सेंटर O ये रहा, a line through center O meets a line through center O at point Q, मतलब एक लाइन है जो सेंटर से पास होके Q को मिलती है। The line meets point Q and it passes through O, so that OQ is 12. OQ 12 है। Find length PQ. सुपर डुपर इजी सम है। क्या तुमको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 है। इसका मतलब इंस्टेंटली टेंजेंट, रेडियस, सर्कल सब नल एंड वॉइड। मुझे अर्जुन की तरह सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ क्यू, और पी ओ क्यू में पी ओ 5 है, ये 12 है, तो ये कितना? उछल उछल के फुदक फुदक के 13 मार्क मत करना। दिस इज स्टूपिडिटी। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, बिहेव लाइक 10th स्टैंडर्ड। वाई इज 13 नॉट द आंसर? 5 12 13 तो होता है, लेकिन उसमें 13 हाइपो होता है, इसमें 12 हाइपो है। इसलिए इज्जत से कैलकुलेट करो। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, 25 सामने माइनस होगा, 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू रूट 119 इज द आंसर। तो जाल में फंसना मत, 5 12 13 पागलों की तरह अंधाधुन मार्क मत करना। Question 4. Draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and other is secant.
easy time pass sum. Draw a circle. Done. Given line. Done. अब मेन क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन. हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है जो गिवन लाइन से पैरेलल है, सच दैट एक टेंजेंट बनना चाहिए. बन गया. पैरेलल होना चाहिए, ये मैं हाथ से कर रहा हूं इसलिए नहीं है. और एक सेकेंड होना चाहिए, वो भी बन गया. सम ओवर. You have successfully shown a secant, a tangent parallel to the given line. Example 1. Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. बड़े का कॉर्ड जो छोटे का टेंजेंट है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पहले इसको समझो. पहला वर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स एक के अंदर एक. बेटर. बड़े का कॉर्ड छोटे को टच करता है. ये हो गया. AB is the chord of the big circle which touches the small circle at point P. This much is given. तो पहले गिवन लिखो. फिगर, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर दो यहां पे देख के, और गिवन लिखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल. Circle with center O and radius R1 and circle with center O and radius R2. इसमें ना बहुत सारा लिख ले, बहुत मैसेज कन्वे होता है बाय राइटिंग लेस थिंग्स. कम लिखना पड़ता है और सब समझ में आ जाता. R1 इज स्मॉलर देन R2, मतलब एक सर्कल छोटा है दूसरा बड़ा. chord of circle with center O and बड़ा radius is AB. बड़े का chord AB touches छोटू सर्कल radius R1 at point P. This much is given कि बड़े का chord छोटे को टच करता है. ये भी पॉसिबल है कि बड़े का कॉर्ड छोटे को टच ना करे. देखो ऐसे, ये बड़े का कॉर्ड है जो छोटे को टच नहीं कर रहा. ये दूसरा कॉर्ड है जो छोटे को टच नहीं कर रहा है. ये तीसरा कॉर्ड है जो छोटे को टच नहीं, कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे. ये भी नहीं चलेगा. सो द डायग्राम इज रेडी. यू हैव रिटन व्हाट इज गिवन. अब टू प्रूव देखते हैं, बट टू प्रूव के पहले फिगर को खत्म करो. सेंटर से P को ज्वाइन कर दो और सेंटर बता दो O. प्रूव दैट chord bisected at the point of contact. बहुत फनी लैंग्वेज है इंग्लिश. क्या पढ़ना है वो पूरा सेंटेंस तितर बितर कर दिया, डिवाइड कर दिया. प्रूव दैट कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब
P divides AB in two equal parts. तो लिखो to prove chord AB is bisected at point P. मतलब एक्चुअल प्रूफ ये करना है AP इज इक्वल टू BP. AP इज इक्वल टू BP प्रूव कर लो तो सम ओवर हो जाएगा एंड इज रियली इजी. अब प्रूफ जो बहुत ही इजी है. AB touches small circle at P. सच है ना. AB touches the small circle at P. Therefore, AB is tangent of small circle. AB छोटे सर्कल का टेंजेंट है. देखो सर्कल टेंजेंट तो ऐसा ही हुआ है. Therefore, OP is perpendicular to AB. ये कैसे परपेंडिकुलर हो गया? OP परपेंडिकुलर टू AB. किस खुशी में? थियरम 10.1. रीजन थियरम 10.1. Therefore, एंगल P 90. तो पहले ये 90 का जस्टिफिकेशन दे दिया. अब दो ट्राइंगल अलग करने. The two triangles which you can see are OAP, OBP. तो लिखो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो पहला चीज एंगल P 90 जो पहले हमने लिख के समझा दिया कि किस खुशी में 90 डिग्री है. प्रूव्ड. फिर OA OB सेम. रीजन OA और OB सेम है क्योंकि वो बड़े सर्कल के रेडियसेस है भाई साहब. रेडियस 2 ऑफ बिग सर्कल तो दोनों सेम ही है होने वाले. एंड OP इज इक्वल टू OP कॉमन आर्म. तो RHS थियरम के तहत ट्राइंगल OAP और OBP को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर किया जाता है. वेरी गुड, वेरी इजी. 90 सेम, OA OB रेडियस सेम, OP कॉमन आर्म सेम, RHS थियरम पूरा ट्राइंगल सेम. और अगर पूरा ट्राइंगल सेम तो AP PB सेम. Therefore, AP is equal to PB CPCT. और अगर AP is equal to PB, therefore P bisects AB. सम ओवर. तो हमने प्रूव कर दिया कि P AB के दो सरखा भागे डिवाइड करते हैं. प्रूव दैट chord bisected by the point of contact. P bisects AB means P bisects the chord. Example 2. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T. बाहरी पॉइंट T से एक टेंजेंट PT और दूसरा टेंजेंट QT ड्रॉ किया गया है. प्रूव दैट PTQ is 2OPQ. PTQ कहाँ है वो तो आइडेंटिफाई करो. PTQ मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल को हमें डबल OPQ दिखाना है.
ओ रेडियस है, ओ पी क्यू। ऑलराइट, गिवन और टू प्रूव तो खुद लिख सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे? ओके, we are going to use a fact and the fact is radius is always perpendicular to the tangent। किसने कहा ये? थियरम 10.1 ने। So theorem 10.1 says radius is perpendicular to tangent. So can I say OP is perpendicular to TP? OP रेडियस है और TP टेंजेंट। Therefore, can I say angle TPO is 90? Yes, ये एंगल 90 और उसमें से उसका एक टुकड़ा ब्लू है जिसको हम x बना देते हैं। लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो बचा हुआ एंगल टी पी क्यू इज 90 माइनस एक्स। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं कि कौन x कौन 90 माइनस एक्स। सर्कल, टेंजेंट, रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। बट इन दिस देर इज अनदर लाइन पी क्यू विच इज कमिंग आउट। तो पी ओ रेडियस, पी क्यू chord and PT tangent। मुझे ये एंगल को x बनाना है क्योंकि ये टू प्रूफ के अंदर यूज किया हुआ है, और अगर ये x है और पूरा 90 तो ये बचा हुआ टुकड़ा 90 माइनस एक्स। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। TPQ 90 minus x. Now this entire thing is repeated by writing similarly. Similarly, join OQ। OQ ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर यहां पे भी हो गया। देयरफॉर OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। देयरफॉर एंगल Q इज 90। अब OPQ को x बनाया है, ये डार्क ब्लू एंगल x बनाया है, तो ये भी x होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में OPOQ दोनों रेडियस है। इन अ सर्कल OP एंड OQ आर रेडियस, तो ट्राइंगल में आमने सामने के दो एंगल सेम ही होंगे, तो एक x तो दूसरा भी x। मतलब देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, आइसोसेलेस ट्राइंगल OP इज इक्वल टू OQ। और अगर ये x हो गया तो ये 90 माइनस एक्स, TQP, एंगल TQP, therefore angle TQP is 90 माइनस एक्स। तो ये देखो 1 TPQ 90 माइनस एक्स, 2 TQP 90 माइनस एक्स। Going back to the figure,
ट्राइंगल TPQ जिसमें ये TPQ 90 माइनस एक्स, TQP 90 माइनस एक्स, तो ये मैं ढूंढ सकता हूं by using angle sum property. And why am I finding it? Because this is my target angle, the red angle PTQ. तो मुझे PTQ ढूंढना है और PTQ यहां से मिलेगा इन ट्राइंगल PTQ एंगल P प्लस T प्लस Q 180, 90 माइनस एक्स एंगल T 90 माइनस एक्स, 90 90 180 कट, एंगल T इज इक्वल टू 2x, एंगल T 2x मतलब एंगल PTQ 2x, लेकिन x हमने क्या अज्यूम किया था, ये वाला एंगल, द ब्लू एंगल, रिमेंबर दिस वॉज टेकन एज x which is OPQ. Sum over. PTQ is 2 OPQ. मतलब red angle is double of blue angle. PTQ is 2 OPQ. And generally you cannot remember or learn sums like this. Learn करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिगर और दिमाग चाहिए. तो मैं अब समरी देता हूं दैट इफ यू वांट टू रियली रिमेम्बर एंड अंडरस्टेન્ડ इट, ગોખવું નથી, જાતે લખવું હોય તો આટલું ધ્યાન રાખવાનું કે રેડ એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ब्लू एंगल, और ब्लू एंगल यहां पे है, सो रेड इज इक्वल टू 2 ब्लू करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेट द ब्लू एंगल बी x, तो ये वाला 90 माइनस एक्स, सिमिलरली दिस इज अनदर रेडियस, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल रूल के हिसाब से ये भी x, तो ये 90 माइनस एक्स, एंड 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स का एंगल सम प्रॉपर्टी 2x, तो मुझे मिला एंगल PTQ इज इक्वल टू 2x, बट x था मेरा OPQ. सम ओवर. थर्ड एग्जाम्पल, PQ is the chord of length 8 and a circle of radius 5 cm. The tangent P and Q intersect at point T. जरूरी नहीं है कि हमेशा फिगर मिले, तो मैं एक टिप देता हूं, एंड द टिप इज if you find chord and tangent together in a sum, chord और tangent एक साथ एक सम में दिख गए, तो फिगर कुछ ऐसा बनाना, सर्कल tangent 1 tangent 2, और tangent 1 और 2 जहां पे टेंजेंसी होती है वो ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया कॉर्ड. तो कॉर्ड AB और टेंजेंट PAPB. सो कॉर्ड एंड टेंजेंट में फिगर कुछ ऐसा, प्लस यू हैव टू ड्रॉ द रेडियस, तो सेंटर से A ज्वाइन करो तो रेडियस, B ज्वाइन करो तो रेडियस R R, एंड सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट भी ज्वाइन कर देने का, तो परफेक्ट फिगर बन जाता है. वंस अगेन आई एम शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ फिगर with circle and two tangents. Circle
टेंजेंट 1, टेंजेंट 2। वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो कॉर्ड, रेडियस, रेडियस, and these two points have to be joined. Something like your construction. Let's look at the question seriously now. PQ is the chord of circle with length 8. तो देखो chord standing है 8. Radius 5. This is radius 5. This is also radius 5. टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टी, मतलब पी टी और क्यू टी टेंजेंट्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। टेंजेंट की लंबाई फाइंड करनी है फिगर में से, एंड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द फिगर। तो मुझे क्या दिख रहा है फिलहाल, जो सेंटर और पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो ज्वाइन करता ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये फिक्स है, ये बीच में 90 है, प्लस रेडियस एंड टेंजेंट आर 90। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज a right angle triangle where OP is the radius, you would agree, 5, PT is the tangent जो फाइंड करना है, और OT is the distance of the center and point T। और उसके अंदर एक बोनस लाइन है परपेंडिकुलर, जिसको मैं M बुलाता हूं। ये पॉइंट R है, ओके सॉरी R, एंड दिस इज 4। 4 कहां से आ गया? 4 यहां से आया दैट द कॉर्ड PQ इज 8 जिसके दो टुकड़े इक्वल होते हैं, तो 4 and 4। हाउ डू यू फाइंड PT? इट्स वेरी सिंपल, you have to find out one obvious side by using Pythagoras। Pythagoras यूज करके एक इंस्टेंट और ऑब्वियस साइड कौन सी मिलती है वो फाइंड करो, तो वो मिलता है PRO, 5 4 3। 5 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके RO3 मिल गया, 3। देन you have to take this as x and try to find out PT by doing Pythagoras। कैसे? अब ये ट्राइंगल का पाइथा करो, PRT, PT पता नहीं, ये 4 और ये x, so hypo square PT square is 4 square plus x square। और दूसरी तरफ पूरे ब्लू ट्राइंगल का भी पाइथा करना। 3 राइट एंगल ट्राइंगल थे, तीनों का पाइथा कर दिया। पहले का पाइथा ऑब्वियस था, 4 5 3 आंसर आ गया। दूसरे का पाइथा यहां पे अटका हुआ है, और तीसरा ट्राइंगल है PTO, जहां पे PO इज 5, PT इज क्वेश्चन मार्क, और ये x प्लस 3 है। एंड पाइथा ऑफ दिस इज हाइपो स्क्वायर इज PT स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नाउ you will compare the value of PT from both the equations। पहले इक्वेशन की PT स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू दूसरे में PT स्क्वायर की वैल्यू इज x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 9
-25, x square cut, 16 minus 9 plus 25 is equal to 6x, 32 is equal to 6x, 32 होता है 16 माइनस 9 7, हाँ 32 माइनस 6x, सो 16/3, और ये x की वैल्यू को pt स्क्वायर वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, 16/3, pt स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 16/3 स्क्वायर. You will get your answer quite easily. 16 plus 256/9, 144 plus 256/9, 400/9. pt स्क्वायर 400/9 है तो pt 20/3 है. सो आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट, कुछ समझ में नहीं आया है, बट ये फर्स्ट टाइम था. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एग्जाम्पल 3 एंड देन कैरी ऑन द चैप्टर फॉर द सेकेंड लेक्चर. सेकेंड लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा. सो टिल देन एटलीस्ट एग्जाम्पल 3 के पहले का सब कुछ, 2 थियरम, 2 एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 10.1 आ जानी चाहिए. थैंक यू.